السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر سترنگی تیرے رنگ میں رنگ جاواں ناول کے ساتھ، اور یہ اس کی 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو شروع کرتے ہیں، اور آپ کا چھوٹا سا کام ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ اتوار کا دن تھا، دونوں ہی آج گھر پہ موجود تھے۔ لالک کمرے میں داخل ہوئی تو یوشے کو کتابوں کے ساتھ موجود پایا۔ چونکہ اب امتحان قریب تھے تو یوشے کے اندر محنتی اسٹوڈنٹ کا ابال جوش سے چڑھ گیا۔ وہ بیڈ پہ چند کتابیں پھیلائے ہوئے تھا اور خود کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس کی پشت لالک کی جانب تھی، گرے کرتے شلوار، بال ماتھے پہ گر رہے تھے، کن پٹی کی رگیں ابھر رہی تھی۔ لالک نے اس کی چوڑی پشت دیکھ کر آنکھیں گول گھمائی اور مسہری پر ٹک کر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی جو اسے بالکل ہی فراموش بال پین کی نوک کو رجسٹر پر رگڑنے میں مصروف تھا۔ لالک نے ایک بک اٹھائی جس میں ہائی لائٹر سے پوائنٹس نمایاں تھے۔ وہ خود تو سوال حل کرنے میں مصروف تھا۔ اندھا ہی ہو گیا ہے بالکل، ڈفر کو پہ بیٹھی دکھائی نہیں دے رہی۔ لالک نے اس کے مصروف انداز پہ دانت پیسے۔ آج سب اس کی تعریف کر رہے تھے سوائے خان صاحب کے۔ لالک نے ایک بار فراک کے گھیرے پر ہاتھ پھیرا۔ اسے آفس جاتے ہوئے 2-3 ہفتے گزر چکے تھے، اور جو سوٹ وہ پہن کر بیٹھی تھی اس نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ گھر میں سب نے ستائش سے اسے دیکھا تھا، اور ادھر اس موصوف نے ایک نگاہ ڈالنا بھی خانزادی پہ گوارا نہیں کی۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، پتہ نہیں ہے کہ تعریف بھی کرنی ہوتی ہے۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کیوں جل بھن رہی ہے۔ خود ہی کہتی تھی امتحانات کی تیاری کرو۔ اب جب وہ سکون سے کر رہا تھا تب بھی محترمہ کو مسئلہ لاحق ہو گیا۔ در حقیقت خانزادی کو ہر وقت یوشے خان کی توجہ چاہیے تھی، اور سامنے سے خان صاحب کو لالک بی بی سے یہ توقع رکھنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ یوشے نے پین رجسٹر سے اٹھا لیا، کرسی سے ٹیک لگایا اور سوچتے ہوئے پین کو سر پہ ہلکے ہلکے ٹکرانے لگا۔ لالک کی بس ہو چکی تھی، پیر پٹک کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اپنی کتابوں سے ہی شادی کر لو تم۔ ناک کے نتنے پھول رہے تھے، ہاتھ کا مکہ اس کے کندھے پہ جڑتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ یوشے نے چونک کر گردن موڑ کر دیکھا، پھر اس کی بات کو سوچا اور سر جھٹک دیا۔ سر پری کو تو عادت ہے کچھ بھی بولنے کی، پتہ نہیں کس بات پہ غصہ ہوئی ہیں۔ شانے اچکا دیے۔ باہر نکل کر آئی تو دوپہر کے کھانے کی تیاری چل رہی تھی۔ وہ تو آج کھانا پکانا چاہتی تھی، پر زرغونہ نے اسے روک دیا۔ اب اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ پورے ہفتے وہ محنت کرتی اور ایک دن چھٹی کا ہوتا تو کچن میں ہانڈی روٹی کرنے کھڑی ہوتی۔ بس زرغونہ بیگم کو مناسب نہیں لگا۔ ان کی اس بات سے لالک کو خوشی ضرور ہوئی تھی، پر اب وہ بیزار سے پھر رہی تھی۔ مائدہ کے ہاتھ میں ناول یا ڈائجسٹ موجود ہوتی تھی۔ کہانیاں پڑھنے والے کو بھی کتابوں کا نشہ ہی لگ جاتا ہے۔ الفا پھپھو سے گپ مارنے کے بعد وہ کچن میں گئی۔ چچی آٹا گوندنے لگی تھی۔ آپ رہنے دیں، یہ میں کر لوں گی۔ چچی نے چونک کر گردن موڑ کر اسے دیکھا جو پر اعتماد کھڑی تھی۔ زرغونہ قیمہ بھون رہی تھی۔ بی بی، آٹا کبھی گوندا بھی ہے؟ نہیں، پر اب گوند لوں گی۔ ماں کے پیٹ سے تو سب کام سیکھ کر نہیں آئی تھی، وہ روانی سے کہتی۔ ان کے ہاتھ سے آٹے کا بھرا تھال لے چکی تھی۔ چچی نے خفت سے دیکھا۔ زرغونہ بس سر جھٹک کر رہ گئی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا بہو صاحبہ حد سے زیادہ حاضر جواب ہے۔ ٹھیک ہے، کر لو۔ زرغونہ نے سالن کا چمچ ایک طرف رکھا۔ لالک سر ہلاتے باہر نکل گئی۔ چچی ابھی بھی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ لالک واپس آئی اور جگ میں پانی بھر کے لے گئی، اور ساتھ ہی چچی پہ دل جلی مسکراہٹ لازمی اچھالی تھی۔ حرکتیں دیکھ رہی ہیں اپنی بہو کی؟ چچی خفا تھی۔ کیا دیکھوں، تم بھی کچھ درگزر کر لیا کرو۔ آپ تو اب کچھ بولیں گی ہی کہاں، بہو کما کر جو لانے لگی ہے۔ نعیمہ کی بات زرغونہ کو چبھی۔ غلط بات کی گئی تھی۔ مجھے اس کی کمائی سے ہمیں کوئی غرض نہیں، وہ سوائے تمہارے اور کسی کو ایسے جواب نہیں دیتی۔ تمہیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے یہی دیکھا ہے، اس بچے کے ساتھ جیسا برتاؤ کرو وہ بھی اسی ڈھنگ سے برتاؤ کرتی ہے۔ زرغونہ نے اسلاب کی طرف بڑھتے ہوئے ہرا مسالہ کاٹنا شروع کر دیا۔ آپ تو سب کچھ اتنی جلدی بھول گئی؟ چچی نے پھر زور دیا۔ دیکھو نعیمہ، میں کوئی 20 سال کی لڑکی نہیں ہوں جو ایک بات پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ میرا بیٹا خوش ہے، میرے لیے یہ معنی رکھتا ہے۔ میں زبردستی اس پہ اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتی، نہ ہی تقدیر سے لڑ سکتی ہوں۔ ان کو ہمارے گھر کا حصہ بننا تھا تو اللہ نے کسی نہ کسی طرح رستہ بنا دیا، اور یہ نرمی اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ وہ جاب کر کے 4 پیسے کما کر لائیں گی۔ بہو کے پیسے ہم خود پہ خرچ کرنے والے بے غیرت نہیں ہیں۔ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے،
ایک समझदार लड़की है। हाँ कुछ तल्ख और ज़ुबान दराज है, पर उसके अलावा कोई बुराई मुझे नहीं दिखाई देती। ज़रगुना आज पहली बार लैली के हवाले से इतना तबसरा कर रही थी और उसके हक में बोली थी। सांस लेकर चची को देखा। वो बड़े घर से आई हैं, फिर भी खुद को यहाँ एडजस्ट कर रही हैं और हम सबकी उम्मीदों के बरक्स निकली। खुददार लड़की है, अपना काम खुद करना जानती है। जितना होता है मेरी मदद भी कर देती हैं, बाकी मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है जो घर के काम में हाथ बटाए। सब काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। वो मसरूफ़ अंदाज में कहती रही। चची को कोई भी जवाब नहीं सूझा। लैलिक जो नमक लेने वापस किचन में आ रही थी, ज़रगुना की आवाज़ पे दरवाजे पे ही रुक गई थी। सास की इतनी लंबी तकरीर सुन के बेसाख्ता लबों को मुस्कान छू गई। वो खुद वापस गई और नजफ़ को नमक लेने भेजा। नजफ़ और माहिदा दोनों ही सोफ़े पर गर्दन मोड़ के लाली को देख रहे थे, जो पता नहीं क्यों मुस्कुराए जा रही थी। उधर खानज़ादी आटे से खेलने के लिए तैयार थी। वो सोचों में गुम थी। सास के लफ्ज़ों ने उसे ताज़गी बख्श दी। पहली बार अपने लिए इतनी तारीफ़ सुनी, इतनी खूबियाँ थी उसमें। ज़रगुना तो शायद उसे नापसंद ही करती थी, फिर उनकी राय बदल जाना, उफ़ जो भी हो अच्छा ही हो गया। उसने तो कोई ख़ास मेहनत नहीं की थी, सिर्फ अपना रवैया बदला था। अपनी ज़ुबान को लगाम डाली थी, किसी को भी वो लफ्ज़ों से ज़ख्मी नहीं करती थी, बल्कि अब घुल मिल रही थी। उसे अपने अमल का भी अंदाज़ा हो रहा था। सारी ज़िंदगी लड़ मर के गुजार रही थी, यहाँ उसे सुकून तो नसीब हुआ था। कोई जली कटी बातें तो नहीं सुनाता था। वो दिल ही में खुश हो रही थी। सब अच्छा हो रहा था, बस घर वाले उससे राज़ी होने चाहिए थे, क्योंकि आगे उसे अपने लिए उनका वोट बैंक मजबूत करना था। वो चाहती थी यूशे के माँ बाप उस पर भरोसा करें। रहीम बाबा को तो उस पर यकीन था, और अब उसने सास का दिल भी जीत ही लिया था। कम अज़ कम वो बदगुमान नहीं थी, उसे समझने लगी थी। लैली को आज तक किसी ने समझा ही तो नहीं था। यूशे ही बस उसे समझ सका था, जब ये हर सूरत उसकी मदद करता था, 36 का टकराव होने के बावजूद। ख्यालों से जो वो बाहर निकली तो होश आया। आटा हाथ पे चिपक रहा था, जूड़े से बाल निकलकर थोड़ी छूने लगे थे। वो झुंझलाई, दोनों हाथों में आटा चिपका था। नजफ़ को पुकारती, तभी कोई उस पर साया फगन हुआ और आहिस्ता से उसकी लट्टों को कान के पीछे उड़स दिया। वो दोनों जो शाकी निगाहों से लाली को निहारने में मसरूफ़ थी, यूशे की खखार पर पलटी, जो ती चढ़ाए सवालिया नज़रों से दोनों को सख्त तेवर से घूर रहा था। माड़ा, हमारी बेगम को तुम दोनों नज़र लगाओगी क्या? उचटती निगाह उसने किचन के दरवाजे पर डाली। दूसरी तरफ पुप्पू कमरे से व्हील चेयर घसीटती आ रही थी। यूशे की बात सुनकर मुस्कुराई। आइए, आपका ही इंतज़ार था। तुम्हारी बेगम पे जिन वगैरह चढ़ गया है, देखो कैसे अकेले अकेले मुस्कुराई जा रही है। माहिदा ने फिर गर्दन मोड़ी थी। उसकी बात की तायद में यूशे ने बाहर देखा तो माथे पे बल पड़े। सहन की जानिब उसके कदम उठते चले कि वो ट्रांस की कैफियत में गया था, और माहिदा उसका अंदाज़ भाप चुकी थी, जैसे कोई दीवाना मनपसंद चीज़ के पीछे जाए। वो तो फिर जीती जागती इंसान थी। गोशाए यार हो और बहार ना हो, यानी चांद हो और ख़ूबसूरत ना हो। वो तख्त पे बैठी आटे के साथ जंग छेड़ चुकी थी। अब उसके मुंह के ज़ाविये बिगड़ रहे थे, जैसे उकता गई हो। फिर रोनी सी सूरत, फिर गहरा सांस लेना, लटों का चेहरे पे झूल जाना। यूशे दिल की पुकार पे लब्बैक कहता बढ़ रहा था। आंखों के किनारे खाल पे बल आ रहे थे, मुस्कुराती हुई आंखें। लैलिक ने जूं ही सर उठाया तो यूशे को मेहरबान फरिश्ते की सूरत में पाया। लटों से आज़ादी मिलते ही उसने गहरी सांस खारिज की और वापस आटे को देखा। आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। आटे से लदे हाथ देखकर यूशे ने सीने पर बाजू लपेटकर इत्मीनान से कहा। लैलिक ने चैलेंज भरी निगाह से देखा। इतने बुरे दिन आ गए मेरे जो तुम्हारी मदद लूँ? वो जताती निगाहों से देखने लगा। लैलिक को जुमले का एहसास हुआ, दांतों तले ज़बान दबाई। हाँ, बुरे दिन ही आ गए हैं। अब शक्ल क्या देख रहे हो? मुझे कुछ खुश्की ला दो ताकि इस सब को बैलेंस कर सकूं, वरना यहाँ तो आटे की अब लई बन जानी है। गुस्से से नाक सुर्ख होने लगी। प्यार से बोलेंगी तो मदद करूँगा, हुक्म तो मैं हरगिज़ नहीं मानने वाला। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, अब मैं तुम्हारी मिन्नत करूँ क्या? आजिज़ी से कहते वो बरहम हुई। यूशे बेइख्तियार हंसा और उसकी आंखों में देखा काजल शायद आंखों में नमी की जगह से फैल गया था। लगता है किसी ने सारा काजल आंखों में भर लिया है।
کہیں ملک میں کاجل کی قلت ہی نہ ہو جائے۔ وہ پلٹ چکا تھا اور زور سے کہتا نجف کے پاس جانے لگا، تم نے اب مذاق اڑایا تو میں تمہیں… بھابھی بس کریں، کتنی دھمکیاں دیں گی میرے معصوم سے بھائی کو؟ نجف کی سیانی ہنسی ہنستے بولی، شکل معصوم ہونے سے حرکتوں پہ معصومیت کا ٹیگ تھوڑی لگتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھے ہوئے مخاطب ہوئی، اے چھوٹا پاکٹ، جاؤ مجھے تھوڑا سا آٹا لا کر دو۔ یوشے نے اس کے سر پر پہنچ کر بازو سے تھام کر اٹھایا۔ نجف نے منہ پھلا کر اسے دیکھا، بیوی کے آگے چلتی نہیں، بس بہن پر ہی حکم جھاڑنا آتا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھنے کے بعد کہا۔ یوشے کچھ کہتا وہ تیزی سے کچن کی طرف لپکی۔ اپنی بھابھی سے کرائے پہ زبان لے لی ہے کیا؟ یوشے نے تنزیت تخت پہ بیٹھی لالی کو دیکھا۔ ایڈیٹ نہ ہو تو۔ وہ کڑ گئی۔ عرفہ پھپھو ان سب کی قیاس آریاں جاری دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لالی کے آنے سے رونق بڑھ گئی تھی۔ بندہ گدھا ہو پر گھر کا چھوٹا بچہ نہ ہو، ملازم نہیں ہوں میں آپ کی۔ ناک پھلا کر وہ واپس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کان میں سیٹی جیسی آواز گونج رہی تھی، نجف پانی پلا دو، نجف موٹر بند کر دو، نجف دیکھو چولہا جل رہا ہے یا نہیں، نجف دروازے پہ دیکھو دودھ والا آیا ہوگا، نجف نجف اور نجف۔ پیالی اس کی جانب بڑھائی۔ گدھی جو ہو، اس کے سر پہ چپت لگا کر وہ چہرہ ڈھیلا چھوڑ کے آگے بڑھا۔ نجف گھورتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ مائدہ اب بس بھی کر دو، اور کتنا یہ ناول پڑھنا ہے، کچھ شرم حیا بچی ہے؟ دونوں مامیاں کچن میں لگی ہیں اور تمہیں ان کہانیوں سے فرصت نہیں؟ اچانک ہی امن لتاڑا تھا۔ امی یار، مامی نے خود باہر بھیجا تھا، وہ کہہ رہی تھی اب تو تم جانے ہی والی ہو، آرام کرو، پھر گھر جا کے تو کام کرنا ہی ہوگا۔ سویٹ مامی۔ مائدہ نے پلکی جھپکی۔ اچھا زیادہ بنو مت، کمرے میں کپڑے رکھے ان کو طے کر کے جگہ پہ رکھو، اور اب یہ ناول ہاتھ میں دیکھا تو اسے آگ لگا دوں گی۔ اماں تو غصے میں ہی آ گئی تھی۔ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے 1500 روپے جمع کیے تھے، اور آپ ایسے ہی آگ لگا دیں گی؟ جذباتی سی تقریر ابھی شروع ہوئی تھی کہ عرفہ کی آنکھیں دکھانے پر وہ جذبات پہ پانی ڈال کر اندر بھاگی۔ بی بی تم بھی اس کے ساتھ جاؤ، کیا ادھر ادھر دیکھ رہی ہو؟ پھپھو میں تو بیٹھی رہوں نا، لو برڈز کی نوک جھونک دیکھنے دے۔ نجف نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ عرفہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ کبھی نہیں سوچا تھا آٹا گوندنے کی بھی نوبت آئے گی۔ میں نے کھانا بنانا سیکھا ضرور تھا، پر اتنا شوق نہیں تھا۔ جب بھی گھر پہ کبھی ٹرائی نہیں کیا، وہاں تو میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، پر صحیح کہتے ہیں سسرال سسرال ہوتی ہے۔ اس نے خشکا ڈالا تو آٹے کی کچھ بہتر شکل نکل آئی۔ اب وہ آٹے پہ مکے مار رہی تھی۔ میری ماں نے تو کبھی آپ سے کام کے لیے نہیں کہا؟ یوشے خفا سا ہوا۔ اوہو تم اپنی لے کر بیٹھ جاؤ، وہاں سب مجھے گھر سے نکالنے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرتے ہوں گے۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے حویلی اور اس کے مکین یاد آ گئے، جنہیں وہ یاد کرنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی یاد آتے تھے۔ جب یاد آتے تھے تو مزید یاد کرنے لگتی تھی۔ اس خوشی میں بریانی کی دیگیں چڑھائی ہوں گی۔ یوشے اس کے ہاتھ پہ پانی ڈالنے لگا، تھوڑا سا ڈال کے ہاتھ روک لیے۔ لالک نے واپس آٹے پہ مکے لگانے چاہے۔ اب زیادہ مت پھینکو۔ اف یہ کیا وبال مصیبت ہے، پھر آٹا چپک گیا۔ وہ جھنجھلائی اور اسے دیکھا جو مسکرا رہا تھا، حتیٰ کہ آنکھوں میں بھی مسکراہٹ پوشیدہ تھی۔ تم شرافت سے بتاؤ کس خوشی میں مسکرانے لگے ہو؟ کوئی بکواس بھرا جواب نہیں دینا ورنہ یہی تھال تمہارے سر پہ لٹ دوں گی، وہ تڑی لگاتے ہوئے بولی۔ یوشے نے کچھ جواب نہیں دیا، پیالی سے مزید کچھ آٹا ڈالا۔ دونوں میاں بیوی تجربہ کر رہے تھے۔ لالک نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہیں تمہارا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ محبوبہ کی یاد پہ مسکراتے رہتے ہو۔ شک زبان پہ فوراً آ گیا۔ یوشے کلس ہی گیا اور جگ تخت پہ رکھ دیا۔ بیوی کو دیکھ کر بندہ نہیں مسکرا سکتا؟ ضرور، پر ہم دونوں کے درمیان تو جنگ تھی، پھر دوستی ہو گئی۔ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر خوشی پھوٹے، اور نہ ہی تم ہارنا پسند کرو گے، وہ قدرے اعتمادی سے کہتی گئی۔ یوشے دیکھتا ہی رہا۔ عجیب لڑکی تھی، اس کے ہوش اڑا کے اب بھی بے خبر تھی۔ یوشے نے گردن چٹکی۔ اتنی بے خبری بھی اچھی نہیں ہوتی۔ خیر یہ اتنی محنت کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ کبھی پکوان بن رہے ہیں تو کبھی کچھ؟ یوشے نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ لالک نے بے نیازی سے گردن اکڑائی۔ سسرال والوں کا دل جیتنے کے لیے کیا ہے نا، ان کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ اچھا میں نے تو شوہر کا سنا تھا۔
गलत सुना था। असल में बात ससुराल वालों की होती है, शौहर और बीवी का क्या है। उनके रिश्ते में तो मोहब्बत और एहतराम होना ही चाहिए ना, समझाते हुए कहा। यूशे ने बोलने के लिए मुंह खोला। अब तुम हमें दरमियान में मत घसीट लाना। यूशे की अगली बात जो ज़ुबान पे आती ललिक ने फ़ौरन उस पर पानी ही डाल दिया। जैसे मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है उसी तरह, लहजा सरसरी रखा। तुम एक तो सीरियस हो जाते हो और आप मुझे सीरियस लेती नहीं हैं। क्यों लो तुम्हारी फिजूल गोई को सीरियस। तुमने तो कसम खाई है मुझे तंग करने की। आटे की अब बेहतर शक्ल हो चुकी थी। ललिक ने हाथ हटा लिए। यूशे की निगाहें उस पर जमी थी। और अगर मैं कहूँ मुझे वाकई आप अच्छी लगने लगी हैं। मुझे भी तुम अच्छे लगने लगे हो जब से वो फिजूल सी चेन उतारी है और इंसानों वाला हुलिया अपनाया है। बेलचक से अंदाज में उसकी भूरी आंखों में देखा। यूशे बदमज़ा होकर खड़ा हो गया और कफ को दुरुस्त करके मोड़ने लगा। मोहतरमा की क्या बेखबरी थी, जानकर भी अनजान थी, सुनकर भी अनसुनी कर चुकी थी। यूशे, मेरा दुपट्टा फिसल कर गिर गया है, ये मेरे कमरे में रख देना। उंगलियों और हाथ की पुश पे आटा हल्का सा चिपका था। थाल उठाकर बेनियाजी से किचन की जानिब बढ़ गई। यूशे खफगी से उसकी पुश तकता रहा। मिस्सी सा जूड़ा केचर में मुकीद था। कई लंबी लट्टें कमर पे बिखर रही थी। गर्दन मोड़कर तख्त पे उसका जामुनी सिल्क का प्रिंटेड दुपट्टा देखा। वाह माड़ा ओस दाब था वो जाची हुजूरी वकाई। बस ये जी हुजूरी करना रह गई थी। हाथ बढ़ाकर दुपट्टा मुट्ठी में दबोचा और तनफन सा कमरे में घुस गया। जर्द होने से बेशतर कैसर, 7 रंगों से दोस्ती थी मेरी। कई पहर बदलते गए, सुनहरी धूप चमकती तो फिर चांदनी शहर पे उतरती चली जाती। इंसान की बसारत ने समुंदर पे कई सूरज के डूबते मंजर महफूज किए। खान हाउस में रात 9 का वक्त था। दस्तरखान के दोनों अतराफ सब मौजूद थे सिवाय रहीम खान के बड़े सपूत यूशे के, और पीछे ही अरफा बेगम की अलग टेबल लगी थी। ललिक ने ऑफिस से आकर शाही टुकड़े बनाए थे। टिश्यू का दुपट्टा बाएं हाथ से चेहरे के गिर्द से थाम कर सर पर रोका हुआ था। बस बच्चे, मैं इतना मीठा नहीं खाता हूँ। रहीम खान ने उसके सर पर हाथ रखकर रोका तो ललिक ने हाथ रोककर चम्मच कांच की गहरे ट्रे में रख दिया। अरे बाबा, कुछ नहीं होता, आपकी शुगर वैसी आजकल लो चल रही है। उसने ट्रे दस्तरखान पे रख दी। खुशगवार माहौल में खाना खाया जा रहा था। आज उनके दरमियान फूफा साहब फसीहुद्दीन भी मौजूद थे। अच्छी सेहत के हामिल, सर पे हर वक्त पशावरी टोपी रखते थे। फूफा आप भी लेना, भाभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं। नजफ़ ने बराबर में बैठी ललिक को मुस्कुराकर देखते हुए कहा। हमारी बहू का बस नहीं चलता कि रोज़ नए नए पकवान बनाकर खिलाए। रहीम खान हंस पड़े। ललिक और बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। फसी भाई, फिर माहिदा के रिश्ते का क्या सोचा है? मुजम्मिल बहुत अच्छा बच्चा है, हमारी नज़रों के सामने पला बड़ा है और यूशे का अच्छा दोस्त है। चची ने सवाल उठाया। आज शाम मुजम्मिल की वालदा माहिदा के लिए रिश्ता लेकर आई थी। ये सुनने के बाद कि वो लोग अब अपने घर वापस जाने वाले हैं, उनके जाने से पहले वो रिश्ते की बात करना चाहती थी। मुजम्मिल से मुलाकात तो कई बार हुई है भाभी साहब, एक बार यूशे से इसके बारे में पूछ गछ करूँगा। मेरी इकलौती बेटी है, सोच समझ कर ही उसके फ़र्ज से सबक दोष होना चाहता हूँ। प्यार से उन्होंने माहिदा को अपने साथ लगा लिया। गुफ्तगू जारी रही। माहिदा उठकर बाहर आकर सहन में झूले पे बैठ गई। ललिक ने उसे कुछ उलझन का शिकार देखा तो उसके पास पहुँच गई। क्या हुआ माहिदा, तुम इस रिश्ते के आने से खुश नहीं हो क्या? दुपट्टा अब गले पर फैला हुआ था। वो उसके बराबर में बैठ गई थी। माहिदा ने लब काट कर उसे देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, मुझे लगा तुम मुजम्मिल से चिढ़ना सिर्फ जाहिर करती हो, पर शायद तुम्हें वो पसंद ही नहीं। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। वो परेशान करता है जब भी मैं उसे जवाब देती हूँ। बचपन से मामू के घर आती रही हूँ। यूशे से दोस्ती थी, उसके उस दोस्त को भी काफ़ी जानती हूँ। दोनों हाथों की हथेलियाँ लकड़ी के झूले पे जमा रखी थी और निगाहें दरवाजे पर मरकूज़ थी। तो फिर क्या मसला है? मुझे उससे मोहब्बत थोड़ी है, और मैंने सुना है जिससे मोहब्बत हो उसी से शादी करना चाहिए। ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। वो पैर भी अब हिलाने लगी। तुम कहानियाँ पढ़ पढ़ कर फैंटेसी में जा चुकी हो। दरअसल हकीकत में आकर देखो, हमारे मुल्क में अरेंज मैरिज का रिवाज आम है। शादी के बाद ही मियाँ बीवी को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। दूसरा कोई ऑप्शन जो नहीं होता। माहिदा बड़बड़ाई।
वो उदासी बड़ी प्यारी लग रही थी। सफ़ेद रंगत, गहरे भूरे बाल, पठानों सी खूबसूरती थी। हद है। बात ये नहीं कि ऑप्शन नहीं होता। भूलो मत, ये दुनिया है। ऐसे लोग भी होते हैं जो बीवी के होते हुए भी बाहर आंख मटकाते फिरते हैं, और ऐसे ही कुछ बदनसीब औरतें भी अपने मर्द को धोखा दे रही होती हैं। माहिदा ने बात को मुकम्मल कर दी। बीबी, मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, और जितनी तल्ख दुनिया है उतनी तल्ख इन कहानियों में भी मौजूद होती है। जब तुम्हें सब पता है तो फिर किस बात का रोना है कि वो उदास देवी बनकर बैठी हो? लालिक ने तब कर कहा। बताया तो है मोहब्बत, बर्फीले अंदाज में कहा। मुजम्मिल तो तुमसे मोहब्बत का दावेदार है ना? देखो, ये ना सारे फ़लसफ़े हैं। जिसका जो दिल चाहता है वो बोलता है, और जिसकी स्टो चेन पर जो सूट होता है वो उसे मान लेता है। शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो। तुम इस फ़लसफ़े को संजीदगी से सोचो। लालिक ने नरमी से उसका शाना थामा। मेरा केस ही देख लो। यूशे को मुझसे मोहब्बत थी, और फिर शादी भी हो गई। अब देखो, हम खुश हैं, साथ रह रहे हैं। तो तुम्हें यूशे से मोहब्बत हो गई? मोहब्बत होना लाजमी थोड़ी है। मैं उसकी कदर करती हूँ। शादी एक वफ़ा का रिश्ता है। वो एहतियात से लफ्ज़ तोल तोल कर उसे समझाने लगी। यूशे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर माहिदा को समझाया। मोहब्बत एक बार की थी, अब तो उस लफ्ज़ से ही एतबार उठ गया है। न दिल उस बात की इजाज़त देता है। मैं जानती हूँ तुम गलत बयानी करती हो। तुम्हारा यूशे से निकाह क्यों करवाया, मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। पर एक बात कहूँ, तमहीद बांधी। जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तुम दोनों एक हो जाओ, इस खातिर हालात बनते चले गए। वो फिर आसानियत से बोली। निकाह जो हुआ उसकी वजह रहीम खान ने सबको बताई ही थी, पर लालिक ने यूशे की नाकर्दा मोहब्बत का मिर्च मसाला लगाकर एक अलग कहानी उन सबको सुना रखी थी। तुम कह रही हो कि यूशे मोहब्बत नहीं कर सकता था? लालिक ने तीर चढ़ाकर उसकी आंखों में झाँका। बुरा मत लगाना, पर सच यही है। मेरा दोस्त बहुत खुददार है। जहाँ काम करे वहाँ ख़यानत नहीं करता। कैसे अपने बॉस की बहन से मोहब्बत कर लेता? वो थोड़ा लापरवाह सा है, अपनी ज़ात में मगन। पर अब तुम्हारे आने से उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। लालिक खामोशी से उसे सुनती रही। मार्ट से आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। बाइक की आवाज़ पर लालिक की तवज्जो मबजूल हुई। यूशे दरवाज़ा खोलकर बाइक समेत अंदर आया। एक तरफ बाइक खड़ी करके उंगली पे चाबी का गुच्छा घुमाता हुआ उन दोनों के पास आया। बड़ी दोस्ती हो गई है नंद भाभी में, लालिक को इश्तियाक से देखते तंजिया कहा। नाम लिया और शैतान हाजिर। मुंह बिगाड़ कर वो खड़ी हुई थी। अपनी दोस्त को समझाओ और बताओ, तो मुझसे मोहब्बत करते थे और ख़त भी लिखते थे। जो भाई ने देख लिए थे। उन दोनों पे नज़र डालकर वो अंदर चली गई। यूशे ने पुरसोच निगाहों से उसे देखा। अचंभे से माहिदा को देखा। पागल है तुम्हारी बीवी, कोई नई बात बताओ, वो कहता खुद भी अंदर बढ़ गया। 3 दिन बाद फूफा और माहिदा आज वापस जा रही थी। उनके घर की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। फूफा लेने आए हुए थे। सबसे मिलकर माहिदा लालिक से मिलने गई थी। अतवार का ही दिन था। मेरी वजह से तुम्हारा कभी दिल बुरा हुआ हो तो सॉरी, लालिक ने बिना किसी अफसोस के आराम से कहा। यूशे खिड़की पे बाजू रखे सख्त बेजारी से पिछले 5 मिनट से उन दोनों के जज्बाती डायलॉग सुन रहा था। मोहतरमा, तुम निकलो अब, फूफा बाहर शोर मचा रहे हैं। कान की लौ मसलते वो बाहर देखने लगा। जा रही हूँ, तुम तो बस जान छुड़ाने के चक्कर में हो। बीबी, पिछले 3 माह से तुम रह रही थी, अब क्या सारी ज़िंदगी के लिए गोद ले लूँ? अब रो तन गई। बात सच थी। माहिदा का दिल बचपन से यहीं लगता था। उधर वो अकेली बेजार रहा करती थी। गोद लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अरसे में तुम्हारी पड़ोसन बनकर आ जाऊंगी। बड़े दिल में लड्डू फूट रहे हैं। यूशे ने लब मिलाए ताज्जुब से कहा। शुक्र करो तुम्हारे उस लफंगे दोस्त को हाँ कर दी। वो चटक कर बोली। पहली बात, वो कमीना ज़रूर है पर लफंगा नहीं। और दूसरी बात ये कि अब जाओ, हमारी जान छोड़ो। उसकी बात पर लालिक ने उसे घूरा था। माहिदा, अब आ भी जाओ, साथ आरफा की आवाज़ आई थी। आ रही हूँ अम्मी, लालिक से मिलकर और यूशे को आंखें दिखाकर वो बाहर निकल गई। और फिर कमरे में सन्नाटा हो गया। लालिक को तो पप्पू और माहिदा की आदत ही हो गई थी। उनकी कमियों से महसूस ज़रूर होने वाली थी, और माहिदा से ताल्लुकात भी इस्तवार हो गए थे। अब गोया ज़िंदगी से 2 फ़र्द मज़ीद कम हो गए। तुम्हारी फूफो बहुत स्वीट हैं।
मैं उन्हें मिस करूँगी। लाली खुद में मुस्कुराते हुए मसारी पर टिक गई। यूशे ने गर्दन मोड़कर खिड़की के पास से ही उसे देखा। नज़र न लगा दिएगा, अपनी पप्पो को याद कर लिया करें। ला हौल वला कुव्वत। उनका ख्याल आते ही मैं ताऊस पढ़ लेती हूँ। साइड टेबल से लैपटॉप उठाकर उसने गोद में रखकर ऑन कर लिया। आज उसे दूसरे महीने की सैलरी मिल चुकी थी। यूशे के साथ वो रहीम खान के कमरे में मौजूद थी और बड़ी लंबी गुफ्तगू के बाद उन दोनों ने अम्मा अब्बा को कायल कर लिया था। उन दोनों की बात में कोई ऐब नहीं था, बल्कि दोनों ने समझदारी से उनको सारे हक़ाइक़ बयान किए। ज़रगुना कुछ गैर मुतमईन थी, पर लालिक के समझाने पर मान गई थी। उनकी बहू होशियार थी। अल्लाह आसानी करे, तुम लोग देखो कोई फ्लैट वगैरह, बाकी मैं इस घर को किराए पे चढ़ाने का काम मैं खुद कर लूँगा, तवक्कुफ़ से उन्होंने कहा। हाँ, शरीफ लोग हों, देख कर ही मकान किराए पे दिएगा। ज़रगुना ने फ़ौरन फ़िक्र से कहा। थैंक यू बाबा, चाचा भी मान जाएंगे ना? यूशे ने अंदेशा ज़ाहिर किया। लालिक भी चौंकी। हाँ, कहीं चच्ची यहाँ जाने से इनकार न करें। अरे वो भला क्यों मना करेंगी, उसको तो खुद अच्छी जगह रहने का शौक़ था। तुम दोनों फ़िक्र मत करो, वो दोनों भी मान जाएंगे। अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानी करे, ज़रगुना ने मुस्कुरा कर कहा। लालिक मुस्कुराई। शुक्रिया आंटी। तकल्लुफ़ की दीवार गिरने लगी थी। अम्मी बाबा बोला करो, यूशे के ही नहीं, हम तुम्हारे भी माँ बाप हैं। एक और मेहरबानी की गई। लालिक की आंखें साकित हुई, वजूद पतरा गया, अंदाज सपाट। मेरे मॉम डैड मर चुके हैं, वो ट्रांस में कहती उठ गई और बाहर निकल गई। बस कभी वो ऐसी अजीब सी हो जाया करती थी। ज़रगुना उसकी हालत पे कुछ परेशान हुई। अम्मी परेशान ना हो, वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। वैसे हमें लगा था आप दोनों को राज़ी करना मुश्किल होगा। यूशे ने मौजू बदला। मुझे यकीन है ये घर बदलने का ख्याल बहू बेगम का ही होगा। ज़रगुना ने अंदाज़ा लगाया और यूशे की मुस्कुराहट उनके अंदाजे पे मोहर लगा गई। तुमने हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? वैसे ये फ़ैसला हम खुद कभी नहीं कर सकते थे, सारी ज़िंदगी यहीं गुजार देते। रहीम खान दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कुर्सी से उठकर मसारी पर बैठ गए। यूशे भी खड़ा हो गया। लाली खुले जहन की मालिक थी। उसके आने से इस घर के अफराद की सोच भी बदल रही थी। एक ख्याल की ज़रूरत थी, पर उस ख्याल को हकीकत का रूप देने के लिए कुछ हौसले और हिम्मत की ज़रूरत थी, जो खानज़ादी ने आसानी से सबको दे दिया था। शब बखैर। यूशे ताज़ीम के साथ कमरे से निकल गया। उसका आखिरी पेपर बाकी था, जो परसों था। उसने पेपर शुरू होते ही कंपनी की जॉब छोड़ दी थी और पेपर के बाद डिग्री से पहले तक वो मार्ट में फुल टाइम जॉब करने वाला था और लैली के इसरार पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने को तैयार था। उस्ताद साहिबा मोहतरमा खुद होने वाली थी। लैली ग्राउंड से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी। यकीनन माँ बाप के जिक्र पे उदास हुई थी। यूशे दरवाज़ा बंद करके जगह पे आया और किताबें समेट कर एक तरफ रख दी। सर में चुभन सी हो रही थी। पूरों से उसने माथा दबाया। क्या हुआ, तैयारी नहीं करनी? लाली कब भी उसी पोजीशन में थी, अलबत्ता आंखें खोलकर छत पे लटके पंखे को तकने लगी थी। नहीं, सर दुख रहा है। वह आहिस्तगी से उसे देखते हुए बोला। आसमानी आधी आस्तीन और गोल गले वाली शर्ट और गहरा नीले रंग का ट्राउज़र पहना था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी आ चुकी थी, जिससे अब वो रुआबदार सा दिखने लगा था। चेहरे के खड़े नकूश थे। लालिक सन्नाटे के आलम में बैठी थी। तभी गोद में कुछ भारी सा महसूस हुआ। सर उठा के देखा तो यूशे इत्मीनान से सर उसकी गोद में रखकर लेट चुका था। वो करंट खाकर फ़ौरन सीधी हो गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? उसने बरहमी से हकलाहट छुपा कर पूछा। वो पीछे हटना चाहती थी, पर यूशे के वज़न की वजह से नामुमकिन हुआ। कौन सी बदतमीज़ी कर दी मैंने? सर ही तो रखा है, ज़रा दबा दें। कुछ और की खिदमत कर देंगी तो जन्नत ही कमा लेंगी और सीधी सीधी जन्नत में जाएंगी। तुम्हारा गला दबा दूंगी मैं। उसका चेहरा देखा। मैडम प्लीज़, वो दर्द से चूर आवाज़ में बोला। आंखें मूंदे ही रखी थी। लालिक बेबस हुई। उसके दिल में बीट मिस हुई। वो नर्म पड़ी, जानती थी वो बहुत मेहनत कर रहा है और वो उससे उन दिनों बिल्कुल नहीं लड़ती थी। कुछ पल बाद ही यूशे को उसका ठंडा हाथ माथे पे महसूस हुआ तो मबहम सी मुस्कुराहट होठों पे फैल गई। हाथों की नरमाहट दिल में उतरने लगी। वो मसरूर हुआ। लाली का दूसरा हाथ करीबी मसारी पर पड़ा था। यूशे ने हाथ बढ़ा के उसे थाम लिया और सहलाने लगा। आज लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी। यूशे कुछ कहता भी नहीं तो लालिक उसका हाल समझ जाती।
वो गूंग हो गई, खून निचड़कर चेहरे पे जमा होने लगा। नई मुश्किल खड़ी हो रही थी। वो यूशे को उस रास्ते पे चलने से रोकना चाहती थी। गहरी खामोशी, एक फिसूं कमरे के माहौल में तारी हो गया। यूशे को उसके हाथों की नरमाहट से सुकून मिल रहा था। वो नींद में उतर गया था। लालिक ने बेबसी से सर क्राउन से लगा लिया। एक हाथ अब भी यूशे के हाथ में था और दूसरा अब वो उसके बालों में बेखुदी में चला रही थी। यूशे, अपने साथ ऐसा मत करो, तुम खाली रह जाओगे। तुम मुझे नहीं जानते हो, न जान पाओगे। मैं तुम्हें मोहब्बत दे नहीं सकती, न मेरे इख्तियार में है। यहाँ बेबसी की इंतहा थी और मुकाबिल मुस्तकबिल से बेखबर था। आशियाना मेरा चमन, ज़रा ज़रा मिट्टी से एक मकान मैंने तामीर की। अपने नुचड़ा खून सींच कर रंगों से उसे बिखेर दिया। तारों की झरमट में चमकता तारा बन के उभरता गया। सीने में लगी आग से जुनून के हद तक पहुंच गया। बूंद बूंद खून से अपना आशियाना जो बना, एक परी पैकर के वजूद ने मेरा चमन खुशबू से महका दिया। रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई दिनों में शिफ्टिंग मुकम्मल हुई थी। खान हाउस से गुलशन मुआम्मर में अपना एक अपार्टमेंट रेंट पर लेने और अपना खुद का घर रेंट पर देकर नए शिफ्ट होने में तकरीबन 1 माह लगा था। अपार्टमेंट का एडवांस रहीम खान ने अदा कर दिया था। बाकी किराए वगैरह का इतना मसला पेश नहीं आना था। बस हिसाब से हर चीज़ लेकर चलनी थी। खर्चे वही थे जो पहले हुआ करते थे। ललिक तो खुशी से निहाल हो रही थी। उसने अपना एक लॉकेट बेचकर कुछ फर्नीचर ख़रीदा था, ख़ासकर अपने कमरे का फर्नीचर जिसकी अशद ज़रूरत थी। ये क्या है? यूशे ने अचंभे से पूछा। लॉकेट मेरे अकीके पर डैड ने बनवाया था। इसको सेल करके जो पैसे आएंगे हम उससे अपनी पसंद का फ़र्नीचर ख़रीद लेंगे। लॉकेट मिट्टी में लिए उसने महसूस किया। यूशे ने बेतासरी से गर्दन हिलाई, यूँ जैसे उसे ये बात पसंद ना आई हो। दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया आपका? कोई ज़रूरत नहीं इसे बेचने की, मैं कर लूँगा सब। कहाँ से करोगे? चोरी करोगे? आपको फ़र्नीचर चाहिए ना, मैं बंदोबस्त कर दूँगा। मेरी कुछ सेविंग्स है। दिमाग ख़राब मत करो, अपनी सेविंग संभाल के रखो, आगे खर्चे बहुत होंगे। और बिल्कुल घर की शिफ्टिंग के वक्त ही इतने खर्चे निकले थे कि यूशे की सेविंग्स ही काम आई। ये लॉकेट मैंने कौन सा पहन कर घूमना है? जेवर इसीलिए तो होता है कि मुश्किल हालात में इंसान बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, ना कि लॉकर में सजा कर रख दे और अपने बच्चों की शादियों पर आने वाली बहू को चढ़ा दे। मैं ये सब अपने लिए लेकर आई थी। अच्छा खासा कीमती है, घर का सारा फर्नीचर आ जाएगा। और बस ये तवील बहस चलती रही और ललिक के आगे यूशे को घुटने टेकने पड़ गए थे। वो ख्यालों से बाहर निकली, निचला लब काट कर कमर पे दोनों हाथ जमाए लाउंज की सेटिंग को एक बार फिर देख रही थी, किसी तब्दीली की ज़रूरत महसूस करते हुए। अब वो सिंगल सोफ़े घसीट कर उसकी जगह बदलने लगी। यूशे अपने कमरे में फ़र्नीचर सेट करके पानी की बोतल लेने बाहर आया। शर्ट के बाजू पसीने से शराबोर, माथा खुश्क किया। नज़र ललिक पर पड़ी तो सर पीट कर पास पहुंचा। अब क्यों जगह से हटा रही हैं? जब मैं कह रहा था कि पर्दे के साथ वाली दीवार के साथ लगेगा तो तब बड़ा शोर मचाया था। ललिक को बाजू से पकड़ के एक तरफ किया और सोफ़ा वापस जगह पे लगाया। मेरी मर्ज़ी, यह मेरा घर है, वो नरूठेपन से बोली। यूशे ने झुके हुए अंदाज में ही अब्रू उठाई। पहले वाला भी आपका ही था, ये बस मन पसंद है। हाथ झाड़ के वो उसके पास आ गया, बेनियाजी से शाने उचकाकर। आज़ाद झूलती लट को उंगली पे लपेट कर मुस्कुराहट पेश की तो यूशे ने उसके कंधे पे बाजू रख लिया। वो दोनों फ्रैंक तो हो ही गए थे। खुश हैं? एक तायराना नज़र पूरे घर में दौड़ाई। हवा से बातें कर रही हूँ, खुशी का पैमाना बताया, जो वो सुनकर हंस पड़ा। गुलशन की एक अच्छी सोसाइटी में मौजूद 6ठी मंजिल पे उनका फ्लैट था। जी बिल्कुल। फिर रेंट भी मुँह फाड़ था। ललिक अपनी आधी सैलरी किराए में डालने को राज़ी थी और बाकी उस घर के दोनों पोर्शन का किराया जमा करके किराए है मखसूस रुपए आराम से निकल रहे थे। बाकी घर का खर्च यूशे की जॉब और चाचू की आमदनी से पूरा होता और ललिक बीवी कौन सा पीछे रहने वाली थी। उसका ग्राफिक फ्रीलांसिंग का काम ही बहुत अच्छा जा रहा था। यहाँ की आमदनी ही अलग थी। ललिक वो बच्ची थी जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। उसने इंसानी रवैयों से ज़रूर मार खाई थी, पर दौलत के मामले में किस्मत हमेशा उस पर मेहरबान रही। पैसे की तंगियों से कभी महसूस हुई नहीं
اور جوانی میں آتے ہی اس نے خود کو اس قابل بنا لیا تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان دونوں کی شادی کو 4-5 مہینے بیت گئے تھے اور اس دن کے فیصلے کے بعد سے دونوں ہی انتھک محنت کر رہے تھے۔ اب رات کو وہ یوشے کو گرافک بھی سکھا رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی، یوشے کو اس میں گھنٹہ دلچسپی نہیں تھی۔ مزید یہ تھی کہ ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کی جستجو پیدا ہو گئی تھی۔ اب رکنے والا کام نہیں تھا، سکھ دکھ کے ساتھی بھی بن گئے تھے۔ اس فلیٹ کی اچھی بات یہ تھی کہ کافی کشادہ تھا۔ جگہ جگہ کمروں میں کھڑکیوں کی وجہ سے ایئر کراسنگ ہو جاتی۔ اس کے اپنے کمرے میں بالکنی موجود تھا۔ پورے گھر میں وائٹ پینٹ، چھت پہ فال سیلنگ اور فرش پہ سفید چمکتے ٹائلز نصب تھے، گویا سنگ مرمر۔ لالی کی پسند کا فرنیچر اسے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وائٹ اور بلیک کی نسبت کا فرنیچر، ڈبل بیڈ جو کمرے کے درمیان پھیلا ہوا تھا، سفید ڈریسنگ ٹیبل بیڈ کے سامنے والی دیوار کے بائیں طرف تھی۔ درمیان میں سے دائیں جانب اندر کی طرف چھوٹی سی واکنگ کلازٹ نکلتی تھی اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا، اور پھر باقی دیوار پہ چوکور شیلف کے درمیان خالی جگہ پہ اسکرین موجود تھی۔ ساتھ والی دیوار میں سے بالکنی کا دروازہ، سامنے والی دیوار پہ کمرے کا داخلی دروازہ کھلتا تھا۔ بیڈ کے آگے چھوٹا سا قالین بچھایا گیا تھا اور ساتھ ہی ایک صوفہ رکھ دیا گیا تھا۔ ان کے کمرے سے باہر نکلو تو برابر دائیں والا کمرہ نجف کا تھا۔ یہ کمرہ باقی کمروں کی نسبت چھوٹا بھی تھا۔ ایک راہداری ساتھ نکل رہی تھی۔ بائیں جانب ادھر چھوٹا سا واشنگ ایریا تھا۔ پیچھے ہی آؤ تو لالی کے کمرے کے سامنے تھوڑے فاصلے کے بعد لاؤنج تھا، جہاں کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے ساتھ پردے لگائے گئے تھے۔ نیلے رنگ کے صوفے تھے اور بڑے صوفے کے ساتھ دیوار پہ ایک پینٹنگ نصب کی گئی تھی۔ لاؤنج کے ساتھ ہی ایک کمرے کا دروازہ دیکھنے کو ملتا جو رحیم خان اور زرغونہ کو ملا۔ لاؤنج اور لالی کے کمرے کے درمیان جو فاصلہ تھا، اس کے دائیں جانب خوبصورت سا کچن تھا، نہ بہت بڑا نہ ہی بہت چھوٹا، اور چچا چچی کا روم کچن کی طرف سے ایک راہداری کی جانب سے نکلتا تھا۔ چاروں کمرے اور ایک لاؤنج سمیت یہ کشادہ اور خوبصورت فلیٹ تھا۔ گھر کی سیٹنگ ہو چکی تھی۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ تھا۔ 2 دن سامان کے شفٹنگ کے بعد آج وہ لوگ مکمل طور پہ یہاں آ گئے تھے۔ لاؤنج میں لگی گھڑی نے رات کے 12 بجتے ہی گھنٹہ بجایا تھا۔ کچن میں چچی اور زرغونہ موجود تھی۔ نجف کے عید کے بعد ہی امتحانات تھے تو وہ کام سے فارغ ہو کر نہا دھو کر کمرے میں بند ہو گئی۔ رحیم اور کریم خان دونوں ہی ایک ہی کمرے میں بیٹھے حساب کتاب کی بابت گفتگو کر رہے تھے، اور وہ دونوں میاں بیوی جن کی ہڈیوں کو سکون نہیں تھا، کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ مسلسل کر رہے تھے۔ میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں۔ لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنا گھر خود ڈیزائن کرنے کا۔ یار مجھے لگتا ہے میرے گھر والوں نے گھر سے کیا نکالا، اس کے بعد سے میری ساری خواہش پوری ہونے لگی۔ وہ حویلی ہی نحوست زدہ تھی، جان بچ جانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ ہنس رہی تھی۔ کمر پہ جارجٹ کا دوپٹہ بندھا ہوا تھا، ٹخنوں سے اوپر سفید ٹراؤزر پہ پنک اونچی قمیض پہن رکھی تھی۔ تو میں خود کو بھی ان سب چیزوں میں شامل کر لوں، وہ شوخی سے بولا۔ لالک دور ہوئی۔ اپنا شمار ان چیزوں میں کبھی مت کرنا، تم انسان ہو، عام سے لہجے میں جتایا تھا، باور کروایا تھا شاید۔ چچی کہتی ہیں شادی کے بعد یوشے کی قسمت کھل گئی ہے، بیوی بڑا اچھا نصیب لائی ہے۔ یوشے نے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کے تاثرات بھاپنے چاہے، کثرتی بازو نمایاں ہوئے تھے۔ لالک اس کی بات پہ ہنسی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی؟ مجھے جب تک تمہاری سپورٹ ملتی نہیں میں ہمت نہیں کر پاتی۔ مجھے معلوم تھا میرے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے، اگر میں لڑکھڑا گئی تو سنبھال لے گا۔ سنبھال لو گے نا؟ اس کی بری آنکھوں میں تشویش سے جھانکا۔ آپ کو لڑکھڑانے ہی نہیں دوں گا۔ ایک ہاتھ جیب سے نکال کر اس کی لٹ پیچھے کی اعتماد بھرا انداز، ایک یقین۔ لالک نے آنکھیں گھمائی۔ وقت کا کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے، فضول ہی سوچتی رہیے گا بس۔ کوڑ کر وہ کچن کی جانب آیا اور فریج سے بوتل نکالی۔ چچی کیا بنا رہی ہیں؟ بوتل منہ سے لگا کر اس نے پوچھا۔ چچی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بس سحری کی تیاری کر رہی ہوں۔ بھابھی آپ جا کر آرام کر لیں، ویسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ یوشے اب تم ہی انہیں سمجھاؤ، میری بات یہ سن نہیں رہی۔ چچی کے ہاتھ میں چھری موجود تھی جسے اشارہ کر کر کے وہ بول رہی تھی۔ یوشے نے ماں کو دیکھا جو چچی کی باتوں کو جھنجھلا کر نظر انداز کرتی کیبنٹ میں برتن سیٹ کرنے کے چکر میں لگی تھی۔ امی
یہ سب بعد میں ہوتا رہے گا, سب ایک دن میں کرنے کی کیوں پڑی ہے آپ کو؟ یوشا کندھے سے تھام کر انہیں باہر لے آیا. لالک مسکراتی ہوئی پاس آئی. میں سب خوشی سے کر رہی ہوں اور تم دور ہٹو. ابھی بوڑھی نہیں ہوئی میں جو تھک کر بیٹھ جاؤں. ماں کے انداز پہ دونوں ہی مسکراہٹ دبانے لگے. ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر وہ خود بھی دل کی گہرائیوں سے مسکرائی تھی. بہت شکریہ بچوں. انہوں نے لالک کا چہرہ تھام لیا. اس نے شرارت سے دیکھا. ماں اولاد کا شکریہ نہیں کہتی. آپ آرام کریں, تھک گئی ہوں گی. لالک کی مسکراہٹ پر انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. مجھے لگ رہا ہے میرے 2 بیٹے ہیں, ایک یہ اور دوسری تم. وہ ہنس پڑی تو ان دونوں کو بھی ہنسی آ گئی. چلے بس, میلو ڈرامہ بعد میں کریں گے, خوش رہیں اپنے خرچے ہر. ماں کا ماتھا چوم کر وہ پیچھے ہٹا. اس کا کندھا جھچوڑ کر وہ سر جھٹک کر مسکراتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. رات کے 2 بجے تھے. پورا فلیٹ اب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. بیڈ روم میں بھی لیمپ کی بدولت مدھم روشنی پھیلی تھی. بیڈ گراؤنڈ سے کمر لگائے, درمیان میں لیپ ٹاپ رکھے, وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھے تھے. لالک نے گیلے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے. یوشا بھی فریش ہو کر آیا تھا. لالک اسکرین پر کرسر کو ماؤس کے ذریعہ چلاتے ہوئے اسے سمجھانے میں مشغول تھی, پر مقابل کیا کر رہا تھا؟ خان صاحب محترمہ کو محبت سے تک رہے تھے. وہ اتنی شائستگی سے اس وقت مخاطب ہوتی تھی کہ یوشا کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا. وہ انگلیوں پہ چہرہ ٹکائے چپ چاپ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور سنجیدگی کو دیکھتا رہا. یوشا, میری شکل لیپ ٹاپ کی اسکرین نہیں ہے, لہٰذا مجھے دیکھنا بند کرو اور سامنے دیکھ لو. سپاٹ سے انداز میں لفظوں پر زور ڈال کر کہا. یوشا نے بیزاری سے پہلو بدلا. اب وہ کسی کھڑوس ٹیچر کی طرح لگ رہی تھی. اور کتنا رہ گیا ہے؟ سحری کا ٹائم ہونے والا ہے, بند کر دیں. بیزاری سے ہی کہا. لالک نے تیوری چڑھا کر دیکھا. میں یہاں صرف تمہارے لیے بیٹھ کر اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہوں اور تم کو ذرا انٹرسٹ نہیں ہے. صبح آفس بھی جانا ہے. میں چاہتی تو آرام کر لیتی, پر پھر بھی میں نے سوچا آرام کے دن نہیں, آرام بعد میں ہوتا رہے گا. پہلے یوشا کو یہ کام سکھا دوں. مفت میں سکھا رہی ہوں اور تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے. ذرا باہر جاؤ اور دو انہیں ہزاروں روپے سے سیکھنے کے لیے, تو پتہ چلے. یوشا کی خماری صورت دیکھ کر وہ سلگ ہی گئی اور لیپ ٹاپ غصے سے بند کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا. یوشا نے سکھ کا سانس لیا. نظر ترچھی کیے دیکھا تو وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ کر منہ میں بڑبڑاتی ہوئی لیٹ گئی. اچھا, ناراض تو مت ہوئے. التجا کی گئی. ہمارے درمیان ایسا رشتہ نہیں ہے جو میں روٹھوں اور تم مناتے پھرو. تلخی سے جواب آیا. آنکھیں بند کر کے بازو اس نے آنکھوں پہ رکھ لیے تھے. یوشا نے سر دھا بھری. دوستی تو ہے. دوستی مائی فوڈ. تو پھر کب تک چلے گا یہ سب؟ ہم نارمل لائف نہیں گزار سکتے. اب تو سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور جو چاہ رہی ہیں حاصل بھی ہو رہا ہے. گھر بھی بدل گیا ہے. کیا ہم اپنے رشتے پہ توجہ نہیں دے سکتے؟ یا آپ کی نظر میں یوشا اب بھی صرف ایک ڈرائیور ہے جو آپ کی منزل تک پہنچا کر اپنی گھر کی طرف لوٹ جائے گا؟ کوہنی اپنے تکیے پہ جمائے سر اونچا کیے وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال میں گھرے ہوئے بولتا رہا. لالی کی جانب سے چت لیٹے ہوئے خاموشی تھی. پھر چپ ٹوٹی. تم نے کہا تھا تم ہر قدم پہ میرا ساتھ دو گے. بہت کوئی ڈائلاگز مار رہے تھے مزمل کے سامنے بھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا, ان کو منزل تک پہنچنا ہے, میں سواری بنوں گا. یہی کہا تھا نا تم نے؟ تھک گئے اتنی جلدی؟ یہ تو ابتدا ہے, ابھی تو ہم نے اپنا گھر کرنا ہے, اس کے لیے بہت کام کرنا ہوگا. تو یعنی اب بات اپنے گھر تک پہنچ گئی؟ ہاں, ہم اپنا گھر خریدیں گے. ساری زندگی کیا رینٹ کے گھر میں رہیں گے؟ خیر ابھی یہ سب انجوائے کرو, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, سادگی سے کہتے ہوئے لالک نے کروٹ بدل لی. یوشا اس کی پشت گھورتا رہ گیا. کیا وہ کبھی بھی جان پائے گی یوشا کے جذبات کو؟ ٹھیک ہے, اگر اس کے اپنے خواب تھے, پر یوشا کے احساسات کو روننا بھی غلط تھا. وہ تو اس رشتے کو محفوظ رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا. بعض اوقات لالی کس طرح کوئی اجنبی بن کر اسے سوالات میں گھرا چھوڑ دیتی تھی, اور اس وقت ایک ہی خیال ہی اس کا سکون واپس لوٹاتا کہ خانزادی اس کے ساتھ تھی, اور یہ اطمینان اسے سرشار کر دیتا. پھر باقی خیالات اور خدشات سب منزل میں تحلیل ہوتے نظر آتے. سحری سے پہلے 3 بجے کے قریب وہ کچن میں بیسن پر جھکی, ٹماٹر اور مرچیں دھو کر چھری اٹھا کر پیچھے والے کاؤنٹر کے جانب پلٹی. یوشا ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا تھا. وہ کب سے کھڑا تھا,
लैलिक को मालूम नहीं था वो खामोशी से उसे काम करते देख रहा था। उसे पाकर लैलिक चौंकी और काउंटर पे चेज़ी रखकर फ्रिज से अंडे और कैबिनेट से बाउल निकाल कर ले आई। घर आज खाली था, सिवाय उन दोनों के। सभी किसी करीबी रिश्तेदार की मौत पे अचानक घर से निकले थे। लैलिक की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, न ही उसका उनके साथ जाने का इरादा था, इसलिए योशे को मजबूरन उसके पास ठहरना पड़ा। वो सुबह लैलिक को ऑफिस छोड़ देने के बाद वहाँ जाने का इरादा रखता था। आहिस्ता से कदम उठाता वो अंदर आया और उसके करीब ही खड़ा हो गया और उसके हाथ से छुरी ले ली और कटिंग बोर्ड पे काउंटर पे पहले से रखी प्याज काटने लगा। लैलिक ने सवालिया निगाहों से उसे देखा और चुटिया से निकलती लंबी लट कान के पीछे की। जब आपने ऑमलेट ही खिलाना है तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। अंदर पड़ा बोर ही हो रहा था। वो प्याज छीलने में मसरूफ़ दिखाई दिया। लैलिक ने ताजुब से देखा, तुम्हें बनाना आता भी है? यूशे ने सर अज़बात में हिला दिया। लैलिक के होठ रश्क से रस्मन गोल हुए। नाइस, तुम बनाओ, मैं बैठ कर देखती हूँ। एक काम करना, पराठे भी बना लेना। वो तो गोया जान छुड़ाती किचन से निकलने लगी। यूशे ने तेवर चढ़ाकर प्याज काउंटर पर रखकर बाजू से पकड़कर उसे रोका और वापस जगह पे लाया। क्या खादिम समझ लिया है? बस नहीं चलता, मुझे जन मुरीद बना दे, मसनूई नाराज़गी से कहा। अब वो मुस्कुराहट रोककर उसे देख रही थी जो तेज़ी से प्याज, टमाटर और मिर्चें काटने की तगोदों में था। प्याज की वजह से आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। लैलिक ने हंसी रोकना मुहाल हुआ। फ़ौरन उसके पास से हट गई। उसने आटा फ्रिज से निकाल रखा था। आटा पहले से गूंधा हुआ मौजूद देखकर उसने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। लैलिक पलट गई और पराठे बनाने की तैयारी करने लगी। सारा सामान तरतीब से दूसरे काउंटर पर रखा। तवा गरम करने के लिए चूल्हा भी जला दिया था। काउंटर के सामने खड़ी वो पेड़े बना रही थी। उन दोनों की पुश्त एक दूसरे की तरफ थी। तभी यूशे अंडों का मिक्सचर फेंटते हुए उसके पास आ गया। मैं ये बना लूँ, फिर तुम इसी तवे पे अंडा डाल देना और सहरी करके अल्लाह के वास्ते पानी की बोतल लेकर कमरे में जाना। बार बार पानी मांगकर मेरा दिमाग मत खौलाना, आराम से कहते कहते वो बरहम खफा अंदाज में बोली। यूशे ने ताबेदारी से सर झुकाया। पेड़े बनाकर लैलिक ने बेलने शुरू कर दिए। यूशे बाउल एक जगह रखकर उसके कंधे पे कुछ झुककर उसकी कार्रवाई देखने लगा। लैलिक उसकी हरकतों से आजिज़ आ गई थी। वो अब मुसलसल उसे जिद करता था और जब वो गुस्सा करती तो अनजान बन जाता। नहायत ही सब्र से लैलिक ने रोटी तवे पर डाल दी। ये गोल पराठा तो कहीं से नहीं लग रहा। उसी पोजीशन में बड़ी संजीदगी से तब सिरा हुआ। अच्छा, अगला तुम बेलकर मुझे सिखा दो, उसी सादगी से तपा हुआ जवाब दिया गया। वो ढीठ अब भी पास खड़ा था। यूशे, गर्मी कम है, तुम किचन से निकल क्यों नहीं जाते? मैं सब खुद कर लूँगी, तुम बाहर जाओ। चिमटे से पकड़ के वो घी डालकर पराठा सेकने लगी। क्या किसी को याद है शादी के पहले दिन किसी ने पराठे देखकर कैसा फजीता खड़ा किया था? हाँ, लैलिक को तो पराठों की आदत हो गई थी। उसे महसूस हुआ वो उसके बालों के साथ खेल रहा है। सुलग कर वो चिमटा हाथ में लिए पलटी। मुंह पे चिपका दूंगी अब अगर तंज किया। चिमटा आगे किए, गुस्से से आंखें दिखाए कहा। यूशे सर पीछे किए, दोनों हाथ बुलंद करते हंसते हुए दूर हुआ। वो हंसते हुए बेहद खूबरू लग रहा था। तुम क्यों मुझे परेशान करने लग गए हो? पहले तो नहीं करते थे, परेशान आकर पूछ लिया। पराठा उतार कर उसने हॉट पॉट में रखा और दूसरा बेलने लगी। मैडम, सताने की बारी ही अब आई है। वो बाहर जाकर काउंटर के आगे बिछी छोटी सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। लैलिक ने सुख का सांस लेकर पूरी सहरी तैयार की। उसी दौरान उन दोनों के दरमियान गर्म जुमलों का तबादला भी जारी रहा। सहरी तैयार करके लैलिक ने सारी चीज़ें टेबल पर लाकर रखी और आखिर में पानी की बोतल यूशे के आगे पटकने वाले अंदाज में रख दी। उस दौरान भी वो यूशे की निगाहों का मरकज़ रही थी। वो बेबस हो चुकी थी। आपकी नाक पर कुछ लगा है, उसने निवाला मुंह में रखकर सरसरी सा कहा। लैली का हाथ फ़ौरन नाक पे गया। क्या है? गुस्सा 24 घंटे जो आपके साथ आपकी नाक पर विराजमान होता है, सादे से लहजे में शाने उचकाए और साथ ही दही चम्मच में भरा था। लैलिक दांत पीसकर उसे देखे गई। तुम अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, जताकर चाय का कप होठों से लगाया। यूशे प्लेट पे झुककर सर हिलाते हुए मुस्कुराने लगा। गुस्सा नहीं करेंगी तो फिर हमारे दरमियान बात करने को बचेगा क्या? वो चढ़ती निगाह उस पर डालकर हल्के से बड़बड़ाया। कुछ कहा? नहीं।
अच्छा, मुझे ईद की शॉपिंग करनी है। गर्दन सीधी किए कुछ अकड़ा कर वो कोहनी टेबल पे जमा कर बैठ गई। माशाअल्लाह से आप लैंडलॉर्ड हैं, कर लीजिएगा शॉपिंग, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। डार्लिंग, मैं अपने पैसे से नहीं तुम्हारे पैसों से शॉपिंग करूँगी और तुम ही शॉपिंग करवाओगे। रस्मन मुस्कुरा के बाबर करवा दिया। यूशा ने नाक पे से गोया मक्खी उड़ाई। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए जहर लगती हैं। अच्छी बात है हनी, तुम्हें तो मैं बिल्कुल अच्छी लगनी ही नहीं चाहती। यूशा को सहरी में मसरूफ़ देखकर उसकी थोड़ी पकड़ के अपनी जानिब की थी। बिना तासिर के यूशा ने गर्दन वापस झुका ली। उसकी गर्दन की रगें उभरती देखकर लालिक ने तंजिया मुस्कुराहट उछाली। अब पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। कुर्सी पीछे खिसकाकर वो उठ रही थी। अब रू नचाकर जता दिया गया। कप लबों से लगा था। यूशा ने मुंह बिगाड़ के देखा तो वो कमरे में जा चुकी थी। मतवाजन कदम लेती वो बालकनी में पहुंच गई। सहरी की चाय वो अक्सर बालकनी में ही पिया करती थी। नजफ, तुमने दूध का चूल्हा बंद नहीं किया था, सारा दूध जलकर खाक हो गया। लालिक उसे डपटती हुई कमरे में आई। नजफ ने गम से सर पे हाथ मारा। उफ, शुक्र अम्मी घर पे नहीं है, वरना अभी बेगैरत औलाद का लक़ब 75वीं बार मुझे नवाज दिया जाता। तज़्वज़ब की हालत में वो सीधी हुई, जाए नमाज फोल्ड करके एक तरफ रखी और लालिक के साथ ही बेड पर बैठ गई। घर वाले सभी सोयम में गए थे। नजफ और लालिक घर पर ही मौजूद थी। नजफ ने दूध चूल्हे पर रखकर इशा के बाद तरावी पढ़ना शुरू कर दी और इस दरमियान दूध को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी थी। अम्मी को दूध का मत बताइएगा वरना बहुत डांट पड़ेगी। कल भी उन्होंने बहुत डांटा था, मैं दूध फ्रिज में रखना भूल गई थी। उसके लहजे में कुछ डर और कुछ कोफ्त की झलक थी। लालिक ने ज़ेरिक निगाह उस पर डाली। अगर मेरी मम्मी ज़िंदा होती और वो मुझे कितना ही डांटती ना, मैं तब भी बुरा नहीं मानती। माँ औलाद को उसकी इस्लाह के लिए ही डांट डपट करती है। हाँ, अमूमन माएँ प्यार से समझाना भूल जाती हैं, पर उनके प्यार और गुस्से दोनों के ही पीछे सिर्फ औलाद की भलाई होती है। वो अफसरदगी से मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी। पर भाभी, हर वक्त डांटने से बच्चे बेजार हो जाते हैं। बच्चा तवज्जो मांगता है जो आजकल के माँ बाप नहीं देते, बस अपनी मर्ज़ी बच्चों पे मुसल्लत करते हैं। होता है, वैसे आजकल के बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं। खैर, ये एक तवील बहस है और ता क़यामत औलाद और वालिदैन के दरमियान में छिड़ी रहेगी कि दोनों एक दूसरे को समझते नहीं। लालिक ने बात फ़ौरन समेट दी। नजफ जांचती निगाह से उसे देखने लगी। आप अपनी अम्मी बाबा को मिस करती हैं ना? हर बार वालिदैन के ज़िक्र पे मुझे समझाती हैं, जज्बात की किसी गहराई में डूब जाती हैं, वो कहते हुए मुस्कुरा रही थी। बहुत मिस करती हूँ। जब से होश संभाला है तब से ही मिस करती हूँ, और अब तो बहुत याद आते हैं मम्मी डैडी और बाकी लोग भी, दादो और भाई। पहली बार उसने तज़किरा छेड़ दिया। वो जानती थी नजफ ये बातें सिर्फ खुद तक महफूज रखेगी। तो मिल लें दादो और भाई से, नजफ ने सीधा हल तजवीज़ किया। नहीं, मैं उनसे सारे रिश्ते तोड़ कर आई हूँ। बहुत शिकवे शिकायतें हैं उन लोगों से, ज़्यादती की है मेरे साथ, फिर भी रिश्ता तो खून का है, कैसे आसानी से बुलाया जा सकता है। उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं सबको मिस करूँगी, पर अब हर गुज़रते दिन के साथ याद बढ़ने लगी है। मुझे नहीं पता जिन बच्चों के वालिदैन बचपन में गुजर जाते हैं वो लोग बड़े होकर कैसे आराम से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। शायद दिखावा करते हैं या शायद आदत हो जाती है, पर मैं कभी नहीं भूल पाई, न किसी ने भूलने दिया। मेरा बचपन तो बाकी बच्चों की तरह हरगिज़ नहीं था। मेरा बचपन एक राज है जो मैं जानती हूँ। घुट घुट कर डर सहम कर जीना कैसे होता है ये कोई नन्ही लालिक से पूछे, और अपने लिए लड़ मर कर कैसे जीते ये कोई आज की लालिक से पूछे। इस्तेज़ाई हंसी। मेरी पप्पो ने मुझे ना करदा गुनाह की सज़ा दी। सारा बचपन इस बात को सोच कर गुजर गया। क्या मैं मनहूस हूँ जो मेरे माँ बाप मर गए, भाई कोमा में गया और मैं ज़रा सी खराशी खाकर बच गई। भरी हुई आवाज़ में कहते हुए वो फिर इस्तेज़ाइया हुई। नजफ की आंखें भीग चुकी थी। उसे भाभी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। पहली बार लालिक ने किसी फ़र्द के आगे दिल खोला था। माँ औलाद के साथ होती है, वो कभी छोड़ के नहीं जाती। खुद से पहले अपनी औलाद का सोचती है। माँ शफ़क़त का दूसरा नाम है। मेरी मम्मी भी मेरे पास ही होती हैं। उनकी ही दुआएं हैं जो मैं ज़िंदा हूँ, वरना बहुत पहले कभी मर जाती। उसकी आवाज़ मज़ीद रुंध गई। आंसू उसने रोक रखे थे। नजफ आकर पीछे से गले लग गई।
لالک نے اس کے ہاتھ تھپکے تو اس نے مزید گھیرا تنگ کر لیا۔ آئی ریئلی لو یو، انسپریشن ہے آپ میری، مجھے بھی آپ کے جیسا اسٹرانگ بننا ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ تھوڑی جمائے بھیگی آواز میں کہنے لگی، میں بہت بری ہوں، کسی اچھے انسان سے تم انسپریشن لو۔ لالک نے اس کا گال تھپکا۔ برا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور آپ میرے ساتھ تو اچھی ہی رہتی ہیں، تو بات ختم، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ لالک مسکرا دی۔ اچھا دور ہو، جذباتی لڑکی۔ اس کے سر پہ چپت رسید کی، دور کیا۔ آؤ کچھ بیکنگ کرتے ہیں۔ لالک کھڑی ہوئی۔ رہنے دینا، آپ ویسے بھی آفس سے تھک کر آئی ہیں، آرام ہی کر لیں، نجف نے معصومیت سے کہا۔ جی نہیں، مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، پر تم بہت ہی آرام پسند ہو۔ آنٹی صحیح تمہیں کام چور کہتی ہیں۔ لالک کے جتانے پہ نجف کا منہ کھل گیا۔ برا سا منہ بنا کر وہ بیڈ سے اتری۔ لالک کمرے سے نکل چکی تھی۔ ہاں جی، تو آج کے لیے بس کرتے ہیں، اور لالک تو بہت اچھے سے فٹ ان ہو گئی ہے خان صاحب کے گھر، یعنی یوشے کے گھر میں، لیکن یوشے کو فٹ ان ہونے نہیں دے رہی اپنے لائف میں۔ اس کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے، کچھ تو اس نے سوچ رکھا ہے۔ میرے خیال میں اس نے سوچ رکھا ہے کہ شاید وہ یوشے کو چھوڑ دے گی، پر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم ملیں گے کل، جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے ٹاٹا بائے۔